Morning, good morning. Morning. Good morning. Yes, so what was the last point? क्या था? Look, before I start Indology, just summation. I guess I did not sum up. हमने sum up नहीं किया था ना? Yes. तो थोड़ा sum up करेंगे and one more thing, like in family marriage concept, patriarchy and sexual division of labor, we will refer to Talcott Parson, right? Family marriage concept में patriarchy and sexual division of labor में we will refer to Talcott Parsons, and from there you can borrow some criticism, right? Listen, in family marriage concept, I mean systems of kinship and patriarchy and sexual division of labor, social stratification, we will refer to Talcott Parsons perspective, है ना? Systematic perspective. तो उधर से यू कैन बोरो सम मोर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. जैसे फेमिनिस्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड टालकर पार्सन. फेमिनिस्ट ने टालकर पार्सन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि ही कंसिडर्ड सिस्टम एज फंक्शनल, बट अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट द सिस्टम इज फंक्शनल फॉर मेन नॉट फॉर वुमेन, इजंट इट? तो उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स यू विल गेट, यू नो, इन स्ट्रेटिफिकेशन यू हैव अ टॉपिक जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, है या नहीं है ना? सो फ्रॉम देयर यू कैन बोरो सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. यू हैव टॉपिक पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वहां से बोरो करेंगे, है ना? तो सम मोर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यू कैन मेंशन, है ना? पेपर 2 में we will discuss Ambedkar's perspective on untouchability. Dr. Ambedkar's perspective on untouchability. Subaltern perspective on untouchability, isn't it? तो इंडियन सोशल सिस्टम से एक दो पॉइंट कैन नॉट बी राइट, वन और टू सेंटेंसेस वी कैन राइट, यू नो, गेटिंग अ पॉइंट. क्रिटिसाइजिंग टालकट पार्सन. अब थोड़ा सा अपने सोशियोलॉजिकल होराइजन को ब्रॉड करना होगा, है ना? अब बच्चों जैसा बिहेवियर नहीं करना होगा. नाउ यू आर मैच्योर, यू नो, तो यू कैन बोरो, डू लॉट ऑफ बोरोइंग्स, है ना? पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो किसी भी सिचुएशन में कैसे भी मैनेज करते ना, कभी रिश्तेदारों से कुछ पैसा लेकर, कभी बैंक से, एट द टाइम ऑफ नीड. यस ना? तो एग्जाम में सम नीड एमर्ज टू बोरो द कॉन्सेप्ट्स, इजंट इट? है ना? कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स. तो ऐसा नहीं है. इस बार भी पेपर 1 में ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी. तो ये जो कहते हैं कुछ लोग कि पेपर 1 में केवल पेपर 1, वो सब गॉसिप का पार्ट होता है ना? वी कैन बोरो समथिंग फ्रॉम पेपर 2, रेफरेंसेस, एग्जाम्पल, फैक्ट्स बोरो कर सकते हैं, राइट? सो ये सब ध्यान में रखना है आपने उधर लिखने के समय, आंसर्स मेंस में. नाउ लास्टली सम अप्रिसिएशन. कुछ अप्रिसिएशन भी तो करेंगे ना, नॉट ओनली क्रिटिसिज्म, राइट? तो लिस्ट कर लेना, यहाँ पे एक अंडर ब्रैकेट लिख लेना कि पॉइंट्स टू बी बोरोड फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ टालकट पार्सन फ्रॉम अदर यूनिट्स, है ना? कुछ अदर यूनिट से भी बोरो कर सकते हो, लिख लेना आपने, राइट? पॉइंट्स टू बी बोरोड. But yes, appreciation, just one paragraph. Despite above criticisms to be borrowed from other parts of syllabus, right? Despite above criticisms, Talcott Parsons' theory of action system or systems of action or theory of action systems or systems of action or social system is relevant to understand how individual action contribute
to making of society. Making of society, right? Positivist sociologists or early sociologists, right? But positivists were early. Sociologists overemphasized only on, overemphasized only on a structural, institutional, only on a structural, institutional realities of the society. Structural, institutional realities of the society, full stop. Non-positivist, under bracket Max Weber, G.H. Mead, emphasized only on individuals, comma, Talcott Parsons propounded a grand theoretical model, a grand general theoretical model to understand the relatedness between or relationship between relatedness between individual and structure. Individual and structure. Right. Yes ना? Individual and structure. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बात जो हमने किया है ना? He also provided important insights. He also provided important insights how order and stability is maintained, how order and stability is maintained in the society, how order and stability is maintained in the society. Under bracket कैसे AGIL, yes ना, adaptation, goal attainment, integration and latency, right? He provided insights to sociologists to understand insights to sociologists to understand the nature of society, the nature of society. Under bracket कैसे pattern variables, nature of society under bracket pattern variables, full stop. For analyzing or understanding contribution of individual, analyzing, understanding contribution of individual as well as a structure, individual as well as a structure, culture in social change. Parsons propounded the concept of cybernetic hierarchy of control. Concept of cybernetic hierarchy of control. Yes. Cybernetic hierarchy of control. Yes ना? ये सब तो दिया ना उसने, इतने वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स इसमें सिस्टम में बात किए, है ना? Yes ना? Practical significance of his theory. Next line, lastly, practical significance of his theory.
lies in conceptual significance of the theory of social system for understanding social issues and problems. Significance of the theory of social system for understanding social issues and problems, right? Nahi, you might not be understanding. Jito. Yes, na? You were absent. Huh? Access. Okay. Okay. ठीक है. ठीक है. If you are absent, please get access to lectures. Otherwise, फिर आगे का क्लास समझ में नहीं आएगा. मुझे ध्यान रहता है कि आप लोग कौन एब्सेंट होते हैं. ऐसा नहीं समझना कि इतना बड़ा क्लास है तो नहीं, है ना? ध्यान रहता है. Yes. हाँ, he is absent today. Yes. For example, एक एग्जाम्पल इसमें बताओ मेरे को. For example, लास्ट सेंटेंस के लिए. For example, हाँ? नहीं, उसके पहले. उसके पहले. For example, लास्ट मैन. खैर, फेस्टिव सीजन था, रिवीजन नहीं किया होगा. कोई बात नहीं, रिवाइज करोगे सब याद आ जाएगा. ट्रस्ट में, जिस तरीके से आपको नोट्स बना दिया, रिवाइज करोगे रिफ्लेक्शन बढ़ेगा. रिफ्लेक्शन रिवीजन से आता है. रिफ्लेक्शन रिवीजन से आता है ना? बार बार जब अपन पढ़ते हैं ना तो रिफ्लेक्शन आता है. राइट? यस. यस. हाँ, प्रॉब्लम ऑफ सती या पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी. सपोज इंडिया में रूरल पॉवर्टी इज अ रियलिटी और नॉट. तो रूरल पॉवर्टी इज देयर बिकॉज ऑफ पुअर एडाप्टेशनल कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर. नंबर वन. यस और नो? यस ना? As agriculture have been modernized and mechanized, as it became dependent on market forces, right? Its adaptational capacity has weakened. It cannot accommodate more and more people, isn't it? And so, unemployment, heavy mechanization, agricultural workers lost their work to heavy machines, right? One heavy machine, one JCB does work of 10 laborers. Yes or no? Right? So this is further goal attainment. Goals were set for poverty alleviation. है ना? Goals were set for poverty alleviation, rural development, but people could not be mobilized and motivated. Isn't it? Yes or no? In Indian society, leadership belong to a particular region, particular language, particular culture. Yes or no? And there had been limitations of leadership in mobilizing the masses. Limitations of leadership in mobilizing the masses. Isn't it? Classes were mobilized but not the masses. Getting a point? अपन न्यूट्रल बात करते हैं, मतलब ये नहीं कि इसको किसी पर्सन पार्टी से रिलेट नहीं करना. दिस हैज बीन द फैक्टर. अमेरिका में भी स्लेवरी कंटिन्यूड. यस ना? इनइक्वालिटी बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, है ना? डिस्पाइट अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना? एंड फ्रीडम, इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका. राइट? क्यों? क्योंकि लीडरशिप प्रॉब्लम. यस ना? At times, American leadership is blamed to be biased towards whites. Yes or no? Because whites hold elite position, dominant position hold करते हैं. That's why इतने 200 years के history में so far only one black American could become president. Yes ना? तो ये है. Right? Leadership failed to mobilize the motivations and the people. Right? Integration, the sections of rural population, particularly women and landless caste groups. Landless caste groups because of failure of land reform. Land reform का failure is a fact in India. अपन discuss करेंगे paper 2 में. Because of failure of land reform, right, remained landless and excluded. है ना? Because of low focus
initially on primary education and universalization of primary education, right? In a meritocratic society, the sections of society, remained excluded, isn't it? Right? And pattern maintenance, pattern maintenance issues and problems like displacement, forced displacement because of acquisition of land or natural disasters. आपको नहीं लगता फ्लड डिजास्टर इन इंडिया, अभी एनडीआरएफ आ गया ना, अभी गवर्नमेंट का डिजास्टर डिपार्टमेंट आ गया ना, राइट? इन लास्ट 10-15 years, बिफोर दैट forced displacement. The old Tehri village was forced to be displaced, isn't it? There are many such cases, that's why syllabus में भी आपका topic है development and displacement is a crisis or challenge of transformation. जो heading यूपीएससी ने दिया है कि challenges of social transformation, उसमें एक topic है development and displacement, development induced displacement, isn't it? So this is getting your point. So all these AGIL related problems, causes the problem of poverty and deprivation. मतलब he provided one conceptual model to explain poverty and deprivation, exclusion, isn't it, in society. So ये सब significance हो गया, right? बस इतना लिख दोगे last में, in defense of Talcott Parsons, right? Okay, okay. बस हो गया. Next syllabus, open the syllabus. Let us discuss. We have 3 perspectives, in paper 2. Yes, ना? कौन कौन सा perspective है? Indological perspective. किसका? देखो उसमें specific है GS घूरिए, इसलिए कहीं बुक में नागला की किताब में और बाकी इंडोलॉजिस्ट के पढ़ के बहुत खुश मत हो जाना, है ना, कि नहीं मैंने तो कुछ अलग से कर लिया. वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेसिफिक मेंशन किसका किया है. अगर ओपन रहता तो अपन बहुत सारे इंडोलॉजिस्ट को स्टडी करते. चूंकि लिमिटेड है तो वी विल स्टडी जीएस घूरे, राइट? नॉट ओनली जनरल इंडोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स ऑफ घूरिए, रादर सम वर्क ऑल्सो, जैसे कास्ट है ना, घूरे साहब का इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट, राइट? अच्छा, एक रिक्वेस्ट एंड सजेशंस टू, चूंकि स्पेसिफिक मेंशन है जीएस घूरिए, तो अपना दिमाग थोड़ा कम लगाएंगे. अपने इमोशन को यू शुड कंट्रोल, isn't it? And we'll try to understand Indological realities, I mean realities of Indian society from घूरेज perspective. घूरे के perspective से हम reality को समझने की कोशिश करेंगे. आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, है ना, घूरिए से. यस, जनरली लोग डिसएग्री मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी से आप हैं तो एट टाइम्स, लेकिन जो घूरिए साहब कहते हैं उसमें भी पॉइंट है ना, पॉइंट है. अगर वो कहते हैं कि रिलीजन, इंडिया हैज बीन यूनाइटेड बाय रिलीजन नॉट बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी तो चेंज होते रहे इंडिया में. इंडियन कल्चर का जो सोर्स रहा वो क्या रहा? रिलीजन. तो कहते हैं कि रिलीजन कल्चर, रिलीजियस कल्चर के थ्रू हमें सोशल कल्चर एंड स्ट्रक्चर को समझना चाहिए. तो एक पर्सपेक्टिव है उनका. ऐसा थोड़े ना है कि मतलब उनके आने के बाद बाकी पर्सपेक्टिव खत्म हो गया या उनके प्रोपोगेशन से, प्रोपोजिशन से. हाँ, उनका क्रिटिसिज्म आता है कि व्हेन ही टॉक्स अबाउट रिलीजन, ही टॉक्स ओनली वन रिलीजन, नॉट, he did not consider contribution of Christianity in modern education. Modern education में Christianity ने कैसे contribute किया. He did not consider how Islam contributed to art and architecture, जो कि आज हमारे सामने भी है ना, art and architecture में. तो उनके limitations हैं. Like these points we write in his criticism, है ना. So this is okay. पहले भी कुछ सिनारियो आपसे मैंने पूछा हुआ है कि इंडिया में कुछ तो यूनिक फीचर्स है. कुछ यूनिक फीचर इंडिया का बताइए. टेल मी सम यूनिक फीचर्स ऑफ इंडिया. हाँ, डाइवर्सिटी. ठीक है, उसके पहले, अरे अभी इतना इंटेलेक्चुअल हमेशा क्यों हो जाते हो आप लोग? बुकिस क्यों हो जाते हो? जो आपके सोसाइटी में वॉट एवर यू सी, डोंट यू सी सम यूनिक फीचर इन इंडियन सोसाइटी? चलो कास्ट लाइक मान लो कि यूरोप में भी है एथनिसिटी,
ब्लैक एंड व्हाइट का इनइक्वालिटी हैड बीन देयर, हायरार्किकल इनइक्वालिटी. और डे फॉर स्टडी, आई टोल्ड यू आई विल टेक क्लास, है ना. लेकिन बाय द इवनिंग आई वाज टोल्ड बाय ऑफिस स्टाफ की सर बहुत सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे गुस्सा भी हो रहे थे कि ये क्या है, आप रिलीजन धर्म कुछ नहीं मानते काइंड ऑफ. मतलब ना ना, आप विजयदशमी के ऊपर सारे इंस्टीट्यूट बंद है, आप क्लास कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि भाई ऑफ कर दो, ठीक है. तो ये तो यूनिक है ना इंडिया में, यस और नो. उधर उसने बोला था, किसने, सेंट कैल्विन प्रोपोगेटेड दैट work is worship, work is virtue, and work is oriented towards glory of God, and that means कि holiday not required, factories and companies organization can work 24 into 7. ये point note किया था ना आपने, yes ना, 24 into 7. तो that is European, that is European. But Indian calendar is still full of holidays, yes or no. Indian calendar is still full of holidays, राइट. करवा चौथ कब है? हाँ, अक्टूबर. ओके, कौन सा डे है उस दिन? हाँ, डेट. एक बार मैं क्लास ले रहा था, अचानक याद आया इन बिटवीन कोई डिस्कशन में, इमीडिएटली आई हैड टू स्टॉप द क्लास एंड रश टू देहरादून. राइट. तो अब ये जो फोर्स है, बच्चे भी नहीं समझ सके क्या हुआ. कई बच्चे ऑफिस में पूछने लगे कि अरे कुछ इमरजेंसी हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया सर के यहाँ, क्या हो गया, बच्चे एकदम. लेकिन अब कल्चर, फोर्स ऑफ रिलीजन एंड, सो ये यूनिक है. दिस फीचर इज यूनिक टू इंडिया, दिस फीचर इज यूनिक टू इंडिया. यस. मतलब पहले भी डिस्कस किया था कि इन इंडियन सोसाइटी यू सी, इफ यू गो टू, आई मीन दिस रूरल एरियाज में इज इट, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पंचायत बिल्डिंग है ना, स्कूल्स, राइट. पंचायत सचिव, आई मीन जो सचिव होते, वो सबसे ज्यादा मंथ ऑफ दिस अप्रैल मई जून डिस्टर्ब रहते, क्योंकि उनका काम कुछ नहीं होता ऑफिस का. क्यों? पंचायत में बारात रुकना है. And Sachiv has to stay with the villagers, so they cannot. And अच्छा, जो सरपंच है उसको इलेक्शन में उन्हीं विलेजर्स के पास जाना है वोट के लिए, है ना. तो डेवलपमेंटल वर्क लेस एंड बारात का वर्क मोर, isn't it? Yes or no? Right? So अब this is unique to India. This is unique to India. That is one डेवलपमेंटल डिलीवरी पॉइंट्स, है ना. पंचायत वही है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बीडीओ का लास्ट जो इंटरेक्शन होता है विद द पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटरेक्शन होता है विद द पीपल, कैसे? पंचायत के थ्रू. अब पंचायत बिल्डिंग ऑक्युपाइड, तो दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग यूनिक, इजंट इट? स्पेसिफिक, राइट, टू इंडिया, विच वी कैनॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम पॉजिटिविस्ट परस्पेक्टिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, राइट, और कॉन्फ्लिक्टिस्ट पर्सपेक्टिव. अपन नहीं समझ सकते. इंडिया में कास्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है. कार्ल मार्क्स ने कहा कि इनइक्वालिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. नहीं, इन इंडियन सिस्टम इनइक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ लैंड, बट यूनिटी थ्रू सर्विसेस, यूनिटी थ्रू सर्विसेस, राइट. आज सर्विस सेक्टर इतना बूम कर गया इंडिया में, क्योंकि उसमें तो हमारा हिस्टोरिसिटी है. आई मीन इन आवर हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, राइट, सर्विस स्ट्रक्चर्ड, सर्विसेज वेयर स्ट्रक्चर्ड, राइट. ट्रेडिशनल सर्विसेज नाउ हैव बीन मॉडर्नाइज्ड. आज आपको हेयर कटिंग के लिए सैलून जाते लोकल विलेज में भी एंड पंचायत के आसपास या फिर स्मॉल टाउन्स में, यू हैव टू पे इन कैश. द लोकल जमींदार ऑल्सो हैज टू पे इन कैश. उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया सर्विसेज का. वो लाइक दो सर्विसेज वी आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, इज इट चेंज्ड,
Caste based occupation continues with modernity and modernization. Market relation. Indian society का unique feature रहा है कि there has been harmonic relation because of occupational interdependence as well as disharmony. Intercaste marriage हो गया, दो कास्ट बीच के ग्रुप के बीच में disharmony, conflict and tensions, isn't it? जो इस बार का क्वेश्चन भी था, आंध्र बेते को डिस्कस करेंगे अपन. Harmonic and disharmonic, right? So this is, I mean, Indian society has been unique society. Indian society has been unique society, and those uniqueness cannot be, uniqueness in social structure, institutions, values cannot be explained adequately, appropriately by applying European perspectives. And that's why Indologists, right, Indological perspective gained popularity in Indian sociology. Indian sociology में जो Indological perspective का popularity हुआ, that is because of limitations of European perspectives to understand unique nature of Indian social structure and social system, its culture, unique nature of its culture, right? Yes or no? Yes, yes, this is. So first, Indology में we will define Indology. What is Indology? एक definitional aspect देख लेते हैं. Indology. पेपर 2 का सिलेबस आपने देखा? पेपर 2 फर्स्ट क्या है? Perspectives on study of Indian society, उसमें Indology. Perspective on study of Indian society, Indology. Look, confused नहीं होना. First we will complete all thinkers. तो पेपर 1 का thinkers done, पेपर 2 का thinkers, isn't it? 3 thinkers we have. उसको कंप्लीट करके फिर we will revert back to social stratification, है ना? Yes. Yes. No. G.S. Ghurye, Indology, under bracket G.S. Ghurye. Not Ghurye, man. G.S. Ghurye. Govind Sadasiv Rao Ghurye, right? अभी आगे 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 वो सब लिमिटेशन में आएगा ना, लिमिटेशंस में, सब लिमिटेशंस में, राइट? लिमिटेशंस, यस. इंटेलेक्चुअल्स माइंड जंप मोर टुवर्ड्स क्रिटिक, उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखो. कई बार होता क्या है जब आप और यही प्रैक्टिकल से ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल जो है वो है ना. क्रिटिसिज्म के लास्ट में मैं इसीलिए आप लोग को अभी तक ट्रेन कर दिया. आप जरूरी नहीं है कि हर यूनिट में मैं ऐसा बात करूंगा, लेकिन एक आपको आइडिया आई ट्राई टू गिव कि डिस्पाइट एबव लिमिटेशंस, दैट बैलेंसिंग एक्ट मस्ट बी देयर. दैट बैलेंसिंग एक्ट मस्ट बी देयर. आपको हर टॉपिक के आंसर में एक बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना, उसे प्लीज ट्राई टू लर्न एंड अडॉप्ट इन योर पर्सनैलिटी. अपने पर्सनैलिटी में उसको अडॉप्ट करिए. एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम ऐसा ही होता है, बैलेंस करना चीज़ों को. एंटीथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, है ना. डाउट एवरीवन, पुलिस सर्विस में जाएंगे पढ़ाया जाएगा डाउट एवरीवन, लेकिन केवल डाउट नहीं, है ना. यस, ओके. फर्स्ट, इंडोलॉजी. इंडोलॉजी रेफर्स टू, प्लीज नोट, इंडोलॉजी रेफर्स टू systematic study of Indian society and culture. Literally, better say, literally Indology refers to systematic study of Indian society and culture. Full stop. In other words, it is known as science of Indian society. In other words, it is known as science of Indian society. Dealing with interpretation of ancient text, documents, ancient text, documents, linguistic studies, ancient text, documents, linguistic studies, literature, studies of
ancient text, dealing with interpretation of ancient text, comma, documents, comma, linguistic studies, interpretation of ancient text, documents, है ना, linguistic studies, literature, comma, art and architecture, comma, inscriptions, travelogue, archaeological evidences, inscriptions, travelogue. Please note inscriptions, comma, travelogue. फाहियान का travelogue, है ना? मार्को पोलो, right? का travelogue, right? Archaeological, comma, archaeological inscriptions, etc. etc. Right? Yes, na? Understanding, for example, understanding social relation and culture through religious texts, documents like Mahabharata, Ramayana, Vedas, isn't it? Yes, na? रामायण महाभारत वेदास से जो हम समझते हैं सोसाइटी के बारे में, राइट? फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, वेदाज, शास्त्राज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट? फाहियान का ट्रेवलॉग भी इंडियन सोसाइटी के बारे में इंसाइट देता है ना. जो इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, डोंट यू थिंक दैट प्रोवाइड्स इंसाइट अबाउट इंडियन सोसाइटी? यस ना? गवर्नमेंट पॉलिसीज, लास्ट मैन, यस ना? इंस्क्रिप्शंस पे मिलता है ना में जो धम है, राइट? धम्मा पॉलिसी, इजंट इट? सो दैट इज सम आइडिया अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी. डोंट यू थिंक कि अर्थशास्त्र, दैट बुक्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू politics, administration, society, yes na? So those sources, Indologists rely on those sources to understand Indian society, right? ये conceptual aspect हो गया आपका. Then heading 2, origin of Indology. उसके बाद फिर characteristic बात करेंगे. Origin of Indology. Origin of Indology. Yes, पहले भी डिस्कस किया था शायद. Do you know about William Jones, the founder of Asiatic Society in Bengal, isn't it? I guess 1783 or 84 में, है ना? का डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में ही एस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. और पर्पस क्या था उनका? टू ट्रांसलेट या इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश. इंडियन टेक्स्ट को, जो भी लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एंड एग्रीगेट जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन सोसाइटी. And that general knowledge played important role in developing scientific knowledge by Europeans. Europeans ने जो scientific knowledge develop किया, that was based largely on, particularly the Germans, right? Largely on that general knowledge of Asiatic society. उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर इंग्लिश से जर्मन ट्रांसलेशन हुआ, जर्मन से इटालियन एंड ऑल. Over the years, Indian knowledge system, spread in European society, right? Okay, जो कि टेक्स्ट में देखो, हमारे टेक्स्ट में था, संस्कृतिक लैंग्वेज में था, राइट? तो संस्कृतिक में लिमिटेड एक्सेस टू द पीपल बिकॉज रीडिंग those texts were limited only to few sections of society, कुछ ही लोगों के पास, isn't it? Not to the masses. और यूरोप में क्या था उस समय तक? मास एजुकेशन, isn't it? Every Christian should read his own Bible. ऐसा किन्होंने बोला? सेंट कैल्विन.
and that led to literacy, revolution, educational revolution in European societies, isn't it? Right. So this is first point इसमें लिखो, origin में लिखो first point. Origin of Indology in India is contributed to William Jones, Jones, William Jones, comma, William Jones, Max Muller जर्मन थे, राइट? मैक्स मुलर, हेनरी मेन, etc. Full stop. Next sentence. William Jones founded Asiatic Society of Bengal. William Jones founded Asiatic Society of Bengal to translate Manusmriti and other religious texts into English. Full stop. After that, William Jones founded Asiatic Society of Bengal to translate Manusmriti and other religious text into English. Right? Full stop. इसी में continue करोगे. After that, Society for Acquisition, capital letter में लिखोगे society, है ना? After that, Society for Acquisition, name है ना? Society for Acquisition of General Knowledge about India, Society for Acquisition of General Knowledge about India was founded to translate not only Sanskritic text but also vernacular texts. For translation not only of Sanskritic text but vernacular texts too. जो vernacular में भी text थे important उसको भी translate करना, right? Next point, इसी में origin में ही Herbert, इनका नाम इसलिए रेफर कर रहा क्योंकि जीएस घुरे साहब ने इनसे इनसाइट्स अडॉप्ट किया था, राइट? हर्बर्ट रिजले का कास्ट का स्टडी से, कास्ट एंड ट्राइब. यस, हर्बर्ट रिजले contributed to Indology through his Herbert Risley, R-I-S-L-E-Y. Herbert Risley contributed to Indology through his ethnographic studies. In his book Caste and Tribe in Bengal. बाद में इन्होंने लिखा कास्ट एंड ट्राइब इन इंडिया, है ना? पहले लिखा कास्ट एंड ट्राइब इन बंगाल, फिर लिखा कास्ट एंड ट्राइब इन इंडिया. हर्बर्ट रिजले, राइट? इसमें इन्होंने क्या किया? कास्ट एंड ट्राइब का जो कल्चरल सोर्स था उसको डिस्क्राइब किया, जो इंडिजिनस कल्चरल सोर्स, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, बेथून सोसाइटी फाउंडेड इन मद्रास. Bethune Society founded in Madras also contributed to Indology by organizing regular debate. Bethune Society of Madras also contributed to Indology by organizing regular debates and discussions on Indian science and culture
Indian social sciences and culture. Indian social sciences and culture. Right? In the north, next point, in the north मतलब northern Indian society. In the north बोले तो northern Indian society. एक नाम आएगा अभी, अवध साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड. अवध, अवध को कैसे लिखते? ओ यू डी एच, यस, अवध, ओ यू डी एच, अवध, ओ यू डी एच, नेम है, नाम है, कैपिटल ओ लिखोगे, अवध, ओ यू डी एच, अवध साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड. अवध साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड फॉर ethnographic collection, ethnographic collection of ethnic culture or folk culture, ethnic culture or folk culture of northern Indian society. Of northern Indian society, right? एथनोग्राफिक का मतलब क्या होता है? एथनो मतलब पीपल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल किधर रहते हैं? विलेजेस में, यस ना. उनके कल्चर को क्या बोलते हैं? फोक कल्चर. लोकल कल्चर और फोक कल्चर. गेटिंग योर पॉइंट? तो इन नॉर्दर्न इंडियन society too, this society was set up, for collection of knowledge, information about the folk culture, isn't it? ब्रिटिशर्स को बेचना था सामान, तो जानना था कल्चर, isn't it? जरूरी था ना कल्चर. आज चाइना हमारा कल्चर पे जितना स्टडी करता है उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती. यस, चाइना का फंड होता है ना. और ऐसा स्टडी कर लिया कि अब सारे देवी देवता हमारे चाइना ही बना रहा है. आई मीन जो इंपोर्ट होता है, राइट? एलपीजी में बैन कर नहीं सकते हम, है ना. डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स है, यस और नो. तो उसमें तो इसी तरीके से एट अ टाइम, राइट. अब ये बात नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स का क्लास नहीं है. पॉलिटिक्स का क्लास होता तो इसमें पॉलिटिकल एंगल लेकर आते. लेकिन एक जो मेजर जो उनका पर्पस था, द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स फंडिंग सच स्टडीज, एथनोग्राफिक स्टडीज, राइट, ऑर्गेनाइजिंग डिबेट एंड डिस्कशंस, इजंट इट, टू अंडरस्टैंड सोशल साइंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया इन सदर्न स्टेट्स थ्रू बेथुन सोसाइटी एंड इन नॉर्दर्न स्टेट्स थ्रू अवध साइंटिफिक सोसाइटी. नाम रखा साइंटिफिक ताकि लोगों को डाउट ना हो, है ना. एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर, इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर, राइट. और इंडिया में यूपीएससी के सिलेबस में बस 5 टॉपिक्स हैं इंडियन सोसाइटी से, जीएस जनरल स्टडी में. लेकिन आपको आगे जिस भी आप स्टेट में कैडर मिलता है आपको, तो वहाँ पे लैंग्वेज, कल्चर एंड ऑल यू हैव टू स्टडी. वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर होता, वहाँ पे आपका अटैचमेंट होता, एंड यू राइट पेपर्स ऑल्सो, isn't it? You are trained, isn't it, in local culture, tradition, because to be a successful administrator you must understand the local ethnic culture traditions, isn't it? तो अभी भी है curriculum में आपके. Yes, next line. many nationalist leaders like बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, महात्मा गांधी, एक्सेट्रा. ऑल्सो इनफैक्ट विवेकानंद भी आते हैं इस नाम में, विवेकानंद जी, लेकिन उनको नेशनलिस्ट लीडर है ना, विवेकानंद जी आते हैं ना, उनका भी नाम आता है इंडोलॉजी में. ही ग्लोरिफाइड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इजंट इट, स्पिरिचुअलिटी, राइट, etc. Also propagated Indological ideas
also propagated Indological ideas to organize and unite the people in nationalist movement. और जहाँ तक गांधी जी का सवाल है तो उनका मूवमेंट वाज नॉट ओनली नेशनलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट बट आल्सो नेशनलिस्ट सोशल कल्चरल मूवमेंट थ्रू constructive work, parallel to political movement, he also run social cultural movement, isn't it? Getting your point. यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम इसलिए नहीं मेंशन करते और आप करेंगे भी नहीं गलती से भी क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर was unsympathetic to the culture, isn't it? Particularly the Hindu religious culture, isn't it? Which was organized into caste system, isn't it? Right. But Bal Gangadhar Tilak, Shivaji Mahotsav, Ganesha Mahotsav, Ganesh Mahotsav, Shivaji Mahotsav, he tried to organize, mobilize, unite people, isn't it, in nationalist movement, isn't it? Gandhi also, right? So this is नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट और इसलिए उनका भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट knowledge about Indian social realities in early historical books was based on the information contained in religious scriptures, travelogues, travelogue, yes na? Religious scriptures, travelogues, social political works like Arthashastra, etc. Full stop. An elaborate account, ये next point है आपका, है ना? इसी में continue करो. An elaborate account of the Indian society was provided by the travelers Megasthenes, Megasthenes, MEGAS, THENIS, Megasthenes, provided by Megasthenes, comma, or Ibn Battuta, IBN, Ibn Battuta, Megasthenes, उसके बाद Megasthenes, right? NIS, Ibn Battuta, IBN, BATUTAH, Ibn Battuta, Marco Polo, MARCO, Marco, POLO, Marco Polo, Fahian, FAHIEN, Fahian, etc. And thus, they also contributed to Indology, origin and spread of Indology in Indian society. Indology in Indian society, right? Most of the above mentioned personalities
most of the above mentioned personalities have their studies based on rich cultural tradition, studies based on rich cultural tradition, social cultural tradition of Indian society, social cultural traditions of Indian society, full stop. They interpreted, most of the above mentioned personalities have their studies based on rich social cultural traditions of Indian society, right? They interpreted Indian social cultural values, Indian social cultural values, norms, principles, laws, etc. that governed Indian social system, comma, social relationship, etc. drawing inspiration from religious, cultural sources, बस फुल स्टॉप, राइट, हो गया. सो दो डायमेंशन हमने कवर किया, क्या, व्हाट इज इंडोलॉजी एंड देन ओरिजिन ऑफ इंडोलॉजी. थोड़ा ऑर्गेनाइज रहोगे, अदरवाइज बाकी पर्सपेक्टिव में भी मैं ऐसे ही करूंगा. अदरवाइज जो पर्सपेक्टिव पे बुक है, जैसे नागला की बुक है, उसको अगर ओपन भी करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो. पहले तो इसे सामने बैठ के रखे रहते हो, क्योंकि दीज आर ऑल मोस्टली इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स. यस ना, यस और नो. अभी तक हमने जो बात किया उसमें एक कॉन्सेप्ट मान लो इंडोलॉजी का आ गया, लेकिन उसके बाद वॉट एवर वी हैव टॉक्ड, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, इजंट इट? एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना. जनरल स्टडीज इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज वाइल स्टडीइंग दोज इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स आप रोमांटिक होते हैं, है ना. आप रोमांटिक होते, आपको लगता है कितना ज़्यादा, कितना पढ़ जाऊं, कितना कंप्लीट कर लूं, काइंड ऑफ. यू आर लिटिल फोकस्ड ऑन, लेस फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग, इजंट इट? तो पेपर 2 में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग द फैक्ट्स, ऑर्गेनाइज करना. पेपर 2 में जितना ऑर्गेनाइज करोगे उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी एप्लीकेशन की रहेगी फ्रॉम पेपर 1 और कंपैरिजन फ्रॉम पेपर 1, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, सब हेडिंग, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोलॉजी. ठीक है ना, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोलॉजी. फर्स्ट फीचर यू टेल मी. अभी तक, हाँ, अभी आगे आएंगे ना, अभी तो पूरा जीएस गुरे साहब आएंगे, है ना, क्योंकि इंडोलॉजी अंडर ब्रैकेट जीएस गुरे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जीएस घूरे पूछेगा आपसे, है ना. जनरल इंडोलॉजी एंड देन जीएस घूरे स्पेसिफिक. ओके ओके, राइट. जीएस घूरे 19th सेंचुरी में आते हैं, और ये इंडोलॉजी शुरू हो गया कब हमारे यहाँ? लेट 18th सेंचुरी में, है ना. यस. यस, हाँ, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट फीचर यू टेल मी, आप बताएं. या, यस,
Different relations? Hmm. हाँ हाँ. Unity in diversity. Yes, yes. Indolo Indologica, Indologica. Look, first point, please note, Indological perspective is based on, Indological perspective is based on, yes, ठीक है, आपका insights अच्छा है. Indological perspective is based on interpretation of interpretation of religious, cultural, social, religious, cultural, social, religious, cultural texts or textbooks, texts or textbooks. Full stop. Indologists focus on ancient legal documents like Manusmriti, Ramayan, Mahabharat, Manusmriti, SMRITI, Manusmriti, comma, Ramayan. Huh? No, I am not considering. The Indologists have considered. अभी आगे GS घुरे में he will give reference, reference कास्ट एंड ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में भीम एंड हिडिम्बा का रेफरेंस कि भीम अ कास्ट हिंदूज मैरिड टू हिडिम्बा अ ट्राइब, राइट. फर्दर राम एंड सबरी, राइट. कास्ट हिंदूज, सबरी considered as untouchable caste. So interaction, relation, exchange of food, isn't it? Exchange of food. So later on जो प्रॉब्लम आए सोसाइटी में, कमेंसल डिस्टेंस और कमेंसल रिस्ट्रिक्शंस, बोले तो फूड एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शंस. सो जिस घुरी का कहना था कि वो सब लेटर डेवलपमेंट था, दैट वाज नॉट देयर इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. दोज प्रॉब्लम्स इमर्ज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इजंट इट, राइट. तो इसको सिंपली एक सोर्स मानते हैं. एज आई सेड कि इंडोलॉजी का प्रॉब्लम यही है, अगर जो लिमिटेशन में अपन बात करेंगे कि बी दैट यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट्स लाइक विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और हेनरी मेन, or be that Indian Indologists, they majorly and mostly referred to the text related to Hindu religious religion and culture. तो ये limitation हो जाता है उनका, है ना, कि they failed to accommodate the diverse culture and knowledge, right. तो उसको criticism में मानते हैं अपन, ठीक है ना, लेकिन अभी इसको accept कर लेंगे, राइट. इंडियन साधुज के ऊपर उन्होंने बुक लिखा है जीएस घुरिये ने, राइट. तो उनका क्रिटिसिज्म होता है कि व्हाई ओनली इंडिया, नॉट ओनली इंडियन साधुज कंट्रीब्यूटेड, रादर सूफी सेंट्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड, इजंट इट. तो वो क्रिटिसिज्म पार्ट में अपन करते हैं, लिखेंगे उसको, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट इज दिस हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक, सॉरी, दे यूज हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक, हाँ कंटिन्यूटी में, दे यूज, इंडोलॉजिस्ट यूज हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र एंड historical evidences like travelogue and inscriptions, archaeological sites, etc. Travelogue and inscriptions, comma, archaeological sites, etc. Next point. Indologist emphasized on a study of, next point.
इसी में कंटिन्यूटी में इस हेडिंग, आपका सब हेडिंग क्या है? फीचर्स ऑफ इंडोलॉजिस्ट्स, राइट? Indologists emphasized on a study of ideas, values, norms, culture, etc. related to religion, related to religion and traditions, related to religion and tradition. They studied all these, continuity में करोगे, they studied all these in broad purview of Indian culture. Indian culture. They consider that the values, norms, and institutions. They consider that the values, norms, and institution in Indian society is strongly related to its culture and tradition. Strongly related to its culture and tradition. Right? Next point. According to Indologists, Indian society is unique in its structure and culture. Indian society is unique in its structure and culture. Right? It is far different from European structure, in European social structure and social system. European social structure and social system. So, European perspectives and methodologies, European perspectives and methodologies cannot explain Indian social realities appropriately and holistically. Cannot explain Indian social realities appropriately and holistically. Indian society cannot be understood without taking into account Indian society cannot be understood without taking into account the social cultural continuities. Right? The social cultural continuities. Right? समझो जरा इस पॉइंट को. In European perspective and methodologies on sociology emerged to study modern social changes. Yes or no? Modern social changes. Yes or no? Last man. Yes na? Modernization, modernity and social change in Europe led to emergence of sociology. इनका कहना है कि those perspectives and methodologies meant for studying modern changes cannot be suitable for understanding
Indian society and culture, because Indian society and culture is characterized by continuities. हमारे यहाँ क्या है? Continuity है, and because of that Indian society is unique society. हमारे यहाँ continuities dominates, cultural continuity dominates than the changes, isn't it? Yes or no? Industry बंद हो जाता है, office बंद, modern bureaucracy, bureaucratic offices are closed actually, right? Upholding the culture, holidays, yes or no? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल समझने के लिए. सो यहाँ क्या है? कॉन्टिन्यूटी है, ज्यादा कॉन्टिन्यूटी. सो दोज मेथोलॉजीज कैन नॉट बी अप्लाइड. गेटिंग अ पॉइंट? एप्रोप्रिएटली एंड कैन नॉट स्टडी होलिस्टिकली. इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इनको काउंटर नहीं करना. अभी समझो कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. तो ये सही है कि इंडियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूटी. यस और नो? यस ना? जमींदार मीनाज एंड चौकीदार मीनाज, आज भी स्टेटस कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है? जमींदार्स प्रेफर टू मैरी देयर डॉटर्स और चिल्ड्रंस इन जमींदार्स. यस और नो? चौकीदार्स टू जमींदार्स एंड चौकीदार्स बोथ. नहीं, चौकीदार्स में आई हैव सीन की नाउ प्रेफरेंस टू जमींदार्स ऑल्सो, राइट? बट जनरली होता चौकीदार्स का चौकीदार में. अब ये किस यूरोपियन को समझ में आएगा? ये समझ में आएगा क्या यूरोपियंस को? नहीं ना. वो तो मानते हैं कि बस यूरोपियन बिलीव्ड कि कास्ट एंड ट्राइब्स आर टू सेपरेट एंटिटीज, बट कास्ट लाइक फीचर्स आर देयर इन द ट्राइबल ग्रुप्स आल्सो इन आवर सोसाइटी. यस और नो? यस ना? यस. तो दिस इज उनका मानना था कि मॉडर्निटी हैज कॉज्ड प्रॉब्लम. वेरी रेलेवेंट साहब ने कहा कि मॉडर्निटी हैज कॉज्ड प्रॉब्लम in the tribal society, and so he propounded the concept of national park, setting up of national park for the tribals where their culture could be revitalized. उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. He could not see from the cultural lens कि there is continuity. जो कि जी एस गोरे साहब ने कहा कि tribes are backward caste Hindus because of their geographical location and isolation. They remained, backward, isn't it? And caste Hindus developed. So there should not be, separation. Rather, all policies should be oriented towards integration and unity between tribes and caste, isn't it? क्योंकि इंडियन सोसाइटी क्या है? यूनिक है, कल्चरल. फिर लोगों ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए रामायण महाभारत. इन रामायण महाभारत देयर आर रेफरेंसेस ऑफ यूनिटी. वानर सेना फॉट ऑन बिहाफ ऑफ, राइट? श्री राम कास्ट हिंदू क्षत्रिय, राइट? अगर आप मानते हैं कि वानर सेना बिलोंग टू द फॉरेस्ट्स, इज इट, एंड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट द ट्राइब्स, देन देयर वाज यूनिटी बिटवीन कास्ट हिंदूज एंड ट्राइब्स. आइसोलेशन कहाँ था? ऐसा जीएस घुरे ने कहा, ऐसा जीएस घुरे ने कहा. और ये पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट डिस्कशन हुआ. पीपल प्रेजेंटेड देयर व्यू पॉइंट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? जब ये मैटर उठा कि भाई कैसा पॉलिसी बने, तो किसी ने कहा किस वेरी रेलेवेंट जो कि सेंसस कमिश्नर थे, देन ही सेड कि नो नो नो, ट्राइब शुड बी आइसोलेटेड. जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास एंड मेनी अदर्स प्रोटेस्टेड एंड सेड कि नो नो नो, पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड फॉर इंटीग्रेशन. और इसीलिए मिडिल पाथ वाज अडॉप्टेड, पंचशील, ट्राइबल पंचशील के फॉर्म में. आगे डिस्कस करेंगे ट्राइबल्स में, ठीक है ना? ट्राइब्स इन इंडियन सोसाइटी जो हमारा यूनिट है ना उसमें. So this is, Indian society is unique. Indian society is unique. जैसे blacks and whites का separation रहा है यूरोपियंस में, right, अमेरिका में, वैसा इंडियन सोसाइटी में नहीं है. There had been references of cultural unity, continuity, है ना? So इसलिए ये कहते हैं कि those methodologies cannot be applied. मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने ट्राइब्स एंड कास्ट का, ठीक है ना? बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सोसाइटी में. कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट, यस यस, कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट. जो कॉन्टिन्यूटी है पास्ट से, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडोलॉजिस्ट्स, इंडियन सोसाइटी कैन holistically be understood,
by identifying and understanding historical by identifying and understanding historical, social, cultural moorings, MOORINGS, social cultural moorings, बोले तो features, social cultural moorings, right? Yes, yes ना? For example, MOORINGS, moorings. For example, the institution of marriage, right? Institution of marriage, occupational continuities, role of traditional social organization like caste panchayats, है ना, अंडर ब्रैकेट कास्ट एसोसिएशंस, कास्ट पंचायत्स अंडर ब्रैकेट कास्ट एसोसिएशंस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नेंस एक्सेट्रा. यस ना? मैरिज में आज भी गिफ्ट एक्सचेंज इज डोमिनेंट फीचर और नॉट? गिफ्ट एक्सचेंज इज वन डोमिनेंट फीचर. और ऐसा नहीं कहेंगे कि मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन में ऐसा नहीं है. मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी में डॉरी का सिग्निफिकेंस हैज इंक्रीज्ड, इट हैज नॉट डिक्लाइंड. डिक्लाइन नहीं हुआ, इजंट इट? गिफ्ट एक्सचेंज, डॉरी प्रैक्टिस, डॉरी के वेरिएबल्स है गिफ्ट एक्सचेंज, इजंट इट? जो आज गिफ्ट करते कि नहीं है, मेरे हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है. अब ऐसा बोलना नहीं है कि बस वो समझ जाना है ना? गेटिंग अ पॉइंट? दूसरी पार्टी को समझ जाना है ना? यस यस. अभी लास्ट ईयर एक केस भी हुआ था जो मैरिज बारात जाने के बाद भी मैरिज कैंसिल हो गया हरियाणा के अंदर. फॉर्च्यूनर का डिमांड था. हाँ हाँ, करनाल में. मैटर यूपी का था. हाँ, तो सब भाई भाई हैं, यूपी हरियाणा, राइट? यस, है ना? सब भाई भाई हैं डॉरी के मामले में, है ना? यस, डॉरी ये पहले भी था, आज भी चल रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना? राजस्थान में भी है डॉरी, यस और नो? मीनाज में भी डॉरी काफी है, यस, हर जगह. एंड इसका एक्सपीरियंस आज इनसाइडर, आई मीन फैमिली में, जैसे आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं फैमिलीज में, है ना? अब जनरलाइज तो क्या चेंजेज हो रहा है, लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूटी का फैक्टर एंड फैक्ट इज मोर डोमिनेंट देन चेंज का फैक्ट, राइट? कई बार ड्रॉप आउट्स होना पड़ता है स्कूल से बच्चों को. मैरिज होगा, है ना? पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा. माई थर्ड डॉटर, आई मीन वी आर 6 siblings, 4 sisters and 2. Agrarian society, land based organization, isn't it? तो son meta preferences were high in traditional societies, right? And उसके बाद फैमिली के ऊपर मैरिज, जो पूरा फैमिली का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल सब किधर ओरिएंटेड होता है? ऑर्गेनाइजिंग द फंड्स फॉर मैरिज ऑफ द डॉटर्स, राइट? और उसमें I was also dropped out after marriage of last sister from school, 8th class, 9th, 10th, because of financial condition, convent school से government school, right? So diversity का. My brother was dropped out after marriage of third sister, isn't it? So it happens, you will observe families में कैसे problem आते हैं because of social obligation. और ये किसी individual का नहीं होता ना. This is सोशल कॉन्स्ट्रेन. आपने पढ़ा है ना सोशल फैक्ट? तो डॉरी इन इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसा रहा है? सोशल फैक्ट रहा है, इजंट इट?
social fact, and that social fact put pressure, right? Even on educated, parents. Parents educated हैं, तो उनका education से ऐसा नहीं है कि if they have insights कि this Dory is a social evil, problem है. Basically individual होते हैं ना वो, individual, आप individual होंगे. Society will put pressure for very costly marriage, isn't it? Yes or no? अब उसको follow करना पड़ता है, right? और वो कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. अगर इंडिविजुअल के मैटर है तो इंडिविजुअल रिफ्यूट कर दे, बट दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन सोसाइटी एज एंड इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कल्चर का, और इसलिए ये कंटिन्यू हो रहा है. आज भी डोमिनेंट है, राइट? आज भी डोमिनेंट है. अब ये नहीं कहेंगे कि केवल कास्ट हिंदूज में है. इन राजस्थान विल सी मीना ट्राइब्स में भी डॉरी का, राइट? इन जौनसार बावर, जौनसारी ट्राइब्स में Dowry. Uttarakhand se Jaunsar Bavar area is there, and there also I have seen high gift exchange. Anybody from Jaunsar here? कोई है जौनसार से? नहीं, नहीं. जौनसार्स में पहले नहीं था. In fact, over the period of time, imitation and reference group, right, of the higher classes, right, Brahmin castes in Uttarakhand, imitating those Jaunsars also have started practicing dowry का practice, isn't it? Right. So this has happened, एक concept अपन पढ़ेंगे universalization and parochialization. तो dowry initially जो इस पर little tradition great tradition question भी था, I will discuss. Social change में I will discuss little tradition and great tradition. So dowry earlier was part of great tradition. Over the period of time it has been parochialized and become part of little tradition, folk culture का part हो गया. अब रूरल एरियाज में, विलेजेज में भी जमीन बेचते हैं लोग, राइट? लैंड इज सोल्ड, राइट, टू फंड मैरिज. यस ना? यस और नो? राइट. सो दिस इज एनीवेज नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट. अकॉर्डिंग टू इंडोलॉजिस्ट्स, इंडियन सोसाइटी बुक व्यू in Indian society, better say Indian sociology, according to Indologist, in Indian sociology, book view is equally relevant along with field view. फील्ड व्यू का मतलब क्या हुआ? स्टडीज बेस्ड ऑन स्टडीज, जो कि यूरोपियंस ने बोला. पॉजिटिविस्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, इजंट इट? स्टडी ऑफ द फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स, स्टडी ऑफ द फैक्ट्स, जिसको कहते हैं हम फील्ड व्यू. सो अकॉर्डिंग टू इंडोलॉजिस्ट, फील्ड व्यू कैन गिव ओनली, फील्ड व्यू क्या दे सकता है? फील्ड व्यू कैन गिव only insights into dynamics of change. फील्ड व्यू से क्या मिलेगा? डायनामिक्स ऑफ चेंज, कि चेंज क्या हुआ है. जैसे आप स्टडी कर रहे हैं फूड हैबिट्स का, तो आप इंसाइट्स पा जाएंगे कि यस, फूड हैबिट्स में चेंजेस आर देयर, कि न्यू फॉर्म्स ऑफ फूड, न्यू वैरायटी ऑफ फूड्स आर देयर, है ना? अब ये समझने के लिए कि वेजिटेरियन पिज्जा, राइट, वेजिटेरियन मोमोज, यस और नो, पनीर पिज्जा, राइट, है ना? वेजिटेरियन क्या बोलते हैं उसको? सैंडविच. अब ये सब फूड तो यूरोपियंस है ना, और वहां पे नोशंस ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू कल्चर, इज नॉट पार्ट ऑफ कल्चर, यस और नो? कल्चर का पार्ट नहीं है. वेज बिरयानी, राइट, yes or no? लेकिन है ना? तो to understand this, aspect of reality, we need to rely on book view, right? The religious texts and books that guides the culture, that shapes the culture. And when it comes to food, which is one important aspect of culture, to vegetarian food, isn't it? Yes or no?
राइट? आता है ऐसा, मैकडोनाल्ड में भी नवरात्रा स्पेशल, यस और नो, यस और नो। और ये नवरात्रा स्पेशल जो हो जाता है, पता नहीं केएफसी का स्टडी मैंने नहीं किया इस रिगार्ड कि वहां भी नवरात्रा स्पेशल कुछ आया था क्या, तो दैट इज वेजिटेरियन, दैट इज बिकॉज ऑफ द कल्चरल नीड एंड डिमांड। ये होता है फोर्स ऑफ कल्चर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट मैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फोर्स ऑफ कल्चर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर, इजंट इट? गेटिंग योर पॉइंट? कि मोमो जो आया तो वेजिटेरियन, लेकिन उसको भी नॉन वेजिटेरियन मोमोज, सॉरी नॉन वेजिटेरियन आया उसको भी वेजिटेरियन मोमोज बना दिए, इजंट इट? राइट? सो दिस इज, अब फ्राइड मोमोज भी आ गया, क्योंकि इधर फ्राई खाने का वो है, मोमोज को भी फ्राइड कर दिए, राइट? यस यस यस, ओके, गॉट दिस पॉइंट? सो बुक व्यू along with field view. Field view is not sufficient. Field view से we can understand dynamics of change, but to understand the continuity we need to understand book view. ये लिख लेना, field view can give only insights into dynamics of change, but to understand continuity dimension, continuity aspects of reality, continuity of social culture, institutions, values and norms, we need to rely on book view. To understand continuity of social culture, values, norms, institution, we need to rely on book view, isn't it? And that's why book view popularized by Indologist. Indologist का view को क्या बोलते हैं अपन? Book view बोलते, क्योंकि वो largely किस पे rely करते? Text पे करते, isn't it? Yes. Lastly, Indologists were not apathetic to, Indologists were not apathetic to or antagonistic to, Indologists were not apathetic to or antagonistic to multidisciplinary approach in sociology, multidisciplinary or interdisciplinary approach in sociology, full stop. However, they argued that Indian sociology can adopt interdisciplinary or multidisciplinary approach within the framework of Indian culture and tradition, within the framework of Indian culture and tradition. Indian culture and tradition, right? Within the framework of Indian culture and tradition. They emphasize, एक last sentence इसी में, they emphasized, बोले तो Indologist emphasized on understanding social culture, institutions, social relations, ideologies, etc., within the broad framework of Indian culture and tradition, within the broad framework of Indian culture and tradition. जरा एक पॉइंट को समझ लो इसको, कि और उससे ज्यादा कुछ समझने की कोशिश भी नहीं करना है आपने। ये कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है सोशियोलॉजी, राइट? मल्टीडिसिप्लिनरी हो सकता है, राइट? बट विद इन द framework of Indian culture and tradition, right? Listen, G.S. Ghurye was founding father of sociology. उनका ऐसा मानना था, ये G.S. Ghurye का ही पॉइंट मैंने बोला, जो बोला ये, जब अपन फीचर्स बात कर रहे हैं ना, तो ये मोस्टली फीचर्स किसके बनाए हुए हैं?
जीएस घुरे के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब समझो जरा इस पॉइंट को। इन्हीं के डिसिपल थे एमएन श्रीनिवास। जीएस घुरे वाज अ डोयन, कैप्टन एक्चुअली, वो कैप्टन थे, डोयन थे एकदम। सिंगल हैंडेडली ही ट्रेंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग जीएस घुरे, है ना। उनको कहते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। पायनियर, पायनियर तो थोड़ा सा कॉमन हो गया। कमांडर इन चीफ ऑफ सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया हु सिंगल हैंडेडली ट्रेंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। ऐसा बोलते थे ना प्रोफेसर कॉलेज में, ऐसे ही बोलते थे, मेरे प्रोफेसर ऐसे ही बोलते थे, बहुत, ही वाज अ बिग फैन ऑफ तो ऐसा वर्ड यूज करते कमांडर इन, जब ऐसा लगता कि वॉर होने वाला है अब राइट जब यूज किया कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ बोल के फिर वो पान खाने लगते, तो ऐसा लगता कि शायद आर्मी में भी थे जीएस घुरे। फिर बोलते कि कमांडर इन चीफ ऑफ सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर्स, तो अच्छा सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर्स, जम्मू कश्मीर नहीं है यस, सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर्स, राइट। तो he trained M.N. Srinivas, A.R. Desai, and M.N. Srinivas studied Indian society relying not only on book view but field view. He conducted many field studies, but he conducted field studies, he popularized field view, more scientific sociology in India, लेकिन within the broad framework of इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। बोले तो कास्ट, कास्ट के फ्रेमवर्क से, कल्चर से वो बाहर नहीं निकले। वॉट एवर ही परपाउंडेड संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, उन सब में जो था उनका जो एंगल था वो था कल्चर का, ट्रेडिशन का, इजंट इट, कास्ट का, राइट। उन्होंने कहा कास्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडियन सोसाइटी। जब ही आपने कह दिया कास्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब कि एडॉप्टेड द गाइडलाइन ऑफ जीएस घुरे कि you can be interdisciplinary in India, multidisciplinary, right? In India, you can go for field studies, right? Scientific sociology, है ना। आप scientific sociology propound कर सकते हैं इंडिया में based on studies, लेकिन that within the broad framework of Indian culture and tradition, isn't it? ऐसा मानना किसका था? जीएस घुरे का, इंडोलॉजिस्ट का, राइट, इंडोलॉजिस्ट का। बस नेक्स्ट लाइन, एक लास्ट दो ग्रुप में, सब डायमेंशन, थर्ड सब डायमेंशन। फर्स्ट क्या लिखे आपने, व्हाट इज इंडोलॉजी। सेकंड क्या लिखा आपने, ओरिजिन ऑफ इंडोलॉजी। नहीं नहीं, ओरिजिन ऑफ इंडोलॉजी। थर्ड फीचर्स ऑफ इंडोलॉजी, राइट। अब एक ब्रॉडली इंडोलॉजिस्ट जो है हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोशियोलॉजी में, दे आर टाइपिफाइड कह लीजिए और क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, है ना। उनको दो ग्रुप्स में अपन क्लासिफाई करते हैं या टाइपिफाई करते हैं। फर्स्ट ग्रुप, मतलब हेडिंग दो, ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट्स, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोलॉजिस्ट्स इनटू, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोलॉजिस्ट्स इनटू, हेडिंग, सब हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोलॉजिस्ट इनटू ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट्स, ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट्स, इंडोलॉजिस्ट्स एंड इंडिक इंडोलॉजिस्ट, ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट एंड इंडिक इंडोलॉजिस्ट, इंडिक, इंडिक इंडोलॉजिस्ट, है ना। बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा मीनिंग ओरिएंटेशन दोनों का अलग अलग है ना, राइट। फर्स्ट, ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट्स, ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट्स are the we are the Indologists, sorry, in Orientalist Indologists, we are the Indologists who presented unsympathetic, unsympathetic, sympathy होता ना, unsympathetic and negative view, comma,
meaning and orientation, negative view on Indian society, negative view on Indian society. क्या लिखा आपने? Orientalist Indologists were the Indologists who presented unsympathetic, negative view on Indian society, right? They had negative meanings and orientations on Indian culture and tradition. On Indian culture and tradition. They had negative meaning and orientation on Indian culture and traditions. Right? समझ लो जरा इसको, क्या था ये मैटर, क्या था मैटर? ये था कि जैसे हेनरी मेन को हमने बोला ना, अभी लिखा था ना आपने, हेनरी मेन वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडोलॉजिस्ट. ओरिजिन ही होता है इंडोलॉजिस्ट का इन द राइटिंग्स ऑफ, राइट. Why did William Jones translate our text into English? जबकि संस्कृत as a language could have developed with a spread of those texts in Sanskrit itself. Yes or no? या जो भी वर्नाकुलर हमारा टेक्स्ट था, if those texts would have been promoted, right, in the vernacular language, then our vernacular languages as well as Sanskritic language, Sanskrit as a language would have developed. Yes or no? आज इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है इतना, किस लिए? क्योंकि टेक्स्ट्स वेयर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. यस और नो? यस ना? बिकॉज दे कंसिडर्ड दिस लैंग्वेज एज ट्रेडिशनल, isn't it, inferior, isn't it, and their English language as superior. Getting your point? तो यहाँ पे आता है, इनको कहते हैं, इनको टैग करते हैं, लेबल करते हैं कि they had unsympathetic and negative orientation. Yes or no? आज don't you think कि आपका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, जो पूरा सिस्टम है, आज मराठी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, गूगल सब में ऑप्शन दे रहा है ना? तो डोंट यू थिंक इससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा? यस ना? आज वहीं यूरोपियंस हैव बिकम सिंपैथेटिक टू एंड रिस्पेक्टफुल टू आवर लैंग्वेज. यस और नो? यस ना? अभी तक हिंदी में तो है ही, गूगल ट्रांसलेट एंड गूगल पूरा सिस्टम, सर्च इंजन हिंदी में है, राइट? पंजाबी में, यस ना? यस और नो? तो अभी पॉजिटिव हो गया, अभी पॉजिटिव एंड सिंपैथेटिक हो गया, क्योंकि वी हैव इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट, फ्री, पावरफुल नेशन. यस ना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन उस समय इनका व्यू पॉइंट क्या था? कॉलोनियल वो माइंडसेट, इजंट इट, कि वी वर देयर सब्जेक्ट्स, दे वर सुपीरियर्स, इजंट इट? सो दे डिड नॉट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशंस. अभी आगे और समझ में आएगा. एक तो लैंग्वेज की बात किया मैंने, है ना? हेनरी मेन, बैडन पावेल, मेटकाफे, अभी इन सब का नाम आएगा आगे की यूनिट्स में, विलेज स्टडीज में. दे वर ऑल इंडोलॉजिस्ट, एथनोग्राफर्स एंड इंडोलॉजिस्ट. मेटकाफे propounded that Indian villages are like little republics. Indian village क्या है? Indian village system is like little republics. अब इसको ये मत समझना कि रिपब्लिक बोल रहा है तो तारीफ कर रहा है, नहीं. जब वो when he propagated कि Indian villages are like little republics, he meant that कि Indian village system is closed system and Indian villages were important units of Indian society. Yes or no? जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन था उसका इंपॉर्टेंट यूनिट क्या था? अर्लियर विलेजेज, आज भी है इंपॉर्टेंट यूनिट, पंचायत्स. यस ना? अब उसने कहा कि ये तो क्लोज है. उसने कहा कि वार्स पास ओवर, अंपायर्स एस्टेब्लिश्ड एंड एबोलिश्ड, है ना? वार्स पास ओवर, अंपायर्स एस्टेब्लिश्ड एंड एबोलिश्ड,
but because of close nature Indian village remained intact. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. उसने क्लोज बोल के हमें ये बताया कि इंडियन सोसाइटी एट लार्ज इज डिवाइडेड इनटू विलेजेस. इट्स नॉट एन यूनाइटेड स्ट्रक्चर. ये यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं है, रादर क्या है, डिवाइडेड एंटिटी है. तो रिपब्लिक वर्ड पे ऐसा खुश नहीं होना है, राइट. जैसा रिपब्लिक टीवी, राइट, वैसा ही रिपब्लिक वर्ड था, राइट. हाँ, रिपब्लिक टीवी अगर थोड़ा देर देख लो तो टेंशन हो जाता है. मतलब ऐसा कि यस और नो, गुस्सा, टेंशन, ऐसा ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा चिल्लाते ना, यस और नो, या आराम से बात करते. अरे हम तो आराम से बात करने वाले लोग हैं ना, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात करते, राइट. पता नहीं कितनी बार मैंने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, रिलीजियस टेक्स्ट है ना. तो आई हैव रेड, बाकी रिलीजियस टेक्स्ट को भी पढ़ा. अब फर्स्ट गो में कहीं समझ में नहीं आता है कि रामायण में कहीं लिखा हुआ है कि हाँ आप दूसरे को मारिए, पीटिए, अदर, इजंट इट. वो तो तीर लगने के बाद भी राम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि जाकर उससे लर्न करो. उसका पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट भले एविल एस्पेक्ट है, लेकिन एक एस्पेक्ट डेविल हो सकता है, उसका एविल हो सकता है, लेकिन वो बहुत बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, इजंट इट, यस और नो. तो ऐसा कहीं रामायण में, महाभारत में नहीं लिखा है कि, राइट, है ना, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, है ना, अगेंस्ट अदर रिलीजन्स एंड ऑल, है ना, ऐसा नहीं है. दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, इजंट इट. है ना कि हॉलीवुड से लेकर और इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स भी हैप्पी दशहरा बोल रहे हैं. जो समझ रहा है वो, उसको समझ में आ रहा है कि दिस इज अगेंस्ट एविल, इजंट इट, डेविल, एंड दैट एविल एंड डेविल इज देयर विद इन एवरीवन, इजंट इट. एनीवेज, कभी बाद में इस पर डिस्कस करेंगे. इंडोलॉजी है इसलिए आ जा रहा है रेफरेंस, इंडोलॉजी है ना अभी इसलिए. यस यस. सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, सो दे सेड कि इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू विलेजेस. दिस इज नेगेटिव पिक्चराइजेशन. नो नो, इंडियन सोसाइटी में विलेज एक्सोगेमी प्रैक्टिस्ड. विद इन विलेज ऑल कंसिडर्ड एज सिबलिंग्स. एक किनशिप आप विलेज में देखेंगे. इवन आउटसाइड योर फैमिली, आउटसाइड योर कास्ट, यू रेफर पीपल एज ताऊ, भैया, अंकल, यस और नो. बी यूज किनशिप टर्म्स. जो किनशिप टर्म्स है हमारे, उसका यूज करते, किनशिप टर्म्स का, है ना. ये इंडिया में ही होता है, बड़े पापा, छोटे पापा, राइट, और एक अपने पापा, यस और नो, यस और नो, यस ना. फैमिली में यूनिटी, फैमिली में यूनिटी, दैट इज काइंड ऑफ अफेक्शन. अफेक्शन, दैट इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन, रिगार्ड, affection and regard. Father like regard to uncle, yes or no. Father like regard to uncle. और देखेंगे फादर भी कॉन्शियस रहेंगे कि मेरे से जैसा बिहेव करे. अगर अंकल से गलत बिहेव किया तो बस कुटाई पिटाई, है ना. यस, अंकल के साथ पूरा डिसिप्लिन, है ना. सो दिस इज मतलब इंडियन सोसाइटी, इंडियन फैमिलीज, इंडियन विलेजेज, kinship units, and there has been marriage outside village, marriage outside village. So where Indian society is a close, Indian villages are close. जब मैरिज ही दूसरे विलेज में हो रहा है तो देयर इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द विलेजेज, जिसको कि यूरोपियंस समझ नहीं पाए. यूरोपियंस नहीं समझा क्योंकि उन्होंने कल्चर को नहीं समझा उतने करीब से, उतने गहनता से नहीं समझा कल्चर को, राइट. सो दिस इज, जी.एस. घुर्ये साहब कहते हैं कि urbanization in European society and urbanization in Indian society have two different patterns. Our modern urbanization in European society is related to industrialization. In Indian society, urban development traditionally been related to surplus production in agriculture. Surplus production in agriculture. 4-5 villages में surplus production होता. All village men used to come at a place to sell their surplus प्रोडक्ट. आज भी इंडिया में हाट बाजार का रेलेवेंस आप देखते होंगे. हालांकि उन हाट बाजार में अब चाइनीज गुड्स बिकते ज्यादा देन इंडियन, लेकिन है ना, अभी भी कंटिन्यूटी में है ना, है ना. सो दैट इज इंडिजिनस सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्बनाइजेशन.
That is indigenous source of understanding urbanization. कि Indian urban centers are not industrial centers, rather a center for trade and commerce of the surplus, isn't it? Traditionally, yes ना? आज भी small towns, villages, village nearby towns में आप देखेंगे तो यही phenomena है. Yes or no? Yes, this is. So on these basis, it is said कि ओरिएंटलिस्ट्स, ये सब जो सोशल कल्चरल फैक्ट्स है इसके बेसिस पे कहते हैं कि जो ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, पिक्चराइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज नेगेटिव. दे एम्फेसाइज्ड मोर ऑन डिसहार्मोनिक एस्पेक्ट देन हार्मोनिक एस्पेक्ट. डिसहार्मोनिक एस्पेक्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया देन हार्मोनिक एस्पेक्ट. वो भी कल्चर को कंसिडर किए, बट दे did not interpret the culture as it was, isn't it? जो कल्चर हमारा था उसको उसने इंटरप्रेट नहीं किया, rather जो नहीं था that was glorified by them in consonance with their political masters view, colonial view of divide and rule. उनको डिवीजन को ग्लोरीफाई करना था, है ना? तो इसलिए मेटकाफे एंड ऑल ने कहा कि भाई इंडियन विलेजेस आर लिटिल रिपब्लिक्स, डिवाइडेड यूनिट्स. इंडियन सोसाइटी इज अ डिवाइडेड यूनिट इनटू villages, has many divided units in form of villages, right? So this is, I hope you understood something. Yes ना? अभी विलेज स्टडीज में बहुत कुछ पढ़ना है अभी आगे. ये समझ गया ना? एग्जाम्पल समझ गया ना? दो एग्जाम्पल दिया आपको. एक तो लैंग्वेज के केस में कि दे ट्रांसलेटेड बिकॉज दे कंसिडर्ड आवर लैंग्वेजेज एज इंफीरियर देन इंग्लिश, जर्मन. मैक्स मुलर को क्या जरूरत पड़ रही थी जर्मन में? हमारा संस्कृत ले जाकर जर्मन का वोकैबुलरी को, वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर दिया, है ना? राइट. बट संस्कृत को प्रमोट नहीं किया, संस्कृत को प्रमोट नहीं किया, राइट? गैसल सेफ्ट, गैमेन सेफ्ट, कभी क्वेश्चन भी आया हुआ था, सिलेबस में नहीं हमारे, जर्मन टर्म्स है. गैसल सेफ्ट मीन्स विलेज, सॉरी गैमेन सेफ्ट मीन्स विलेज एंड गैसल सेफ्ट मीन्स अर्बन सोसाइटी. वो इनसाइट उसको यहीं से मिला था, गैसल सेफ्ट एंड गैमेन सेफ्ट का, राइट? ये टर्म जो लेकर गया वहां पे, जिसको बाद में वहां के सोशियोलॉजिस्ट ने उस पर लिखा. ठीक है, आगे. ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया ना अब? ओरिएंटलिस्ट. अब लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ. इन गॉट दिस पॉइंट ना? नेक्स्ट, इंडिक इंडोलॉजिस्ट्स, इंडिक इंडोलॉजिस्ट्स आर सिंपैथेटिक एंड पॉजिटिव टू इंडियन कल्चर, Indian culture, sympathetic and positive to Indian culture and traditions, full stop. Indic Indologists, next sentence, Indic Indologists have positive meanings and orientation on Indian social structure, meaning and orientations on Indian social structures, values and norms. Indian social structure, values and norms, full stop. They presented a positive picture of Indian society. They presented a positive picture of Indian society by highlighting or glorifying the significance of Indian culture and traditions in harmonic, HARMONIC, harmonic Indian culture and traditions in harmonic, HARMONIC, harmonic or peaceful social relations, harmonic and peaceful social relations. Yes ना? आज भी हमारा कल्चर इसीलिए स्ट्रांग है ना?
यूरोपियंस को आज हमारे कल्चर की तरफ देखना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज आवर कल्चर टीच फॉर हार्मनी एंड पीस। यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्रिटेन शुड लर्न फ्रॉम इंडियन फैमिली सिस्टम, कि कैसे इंडियन फैमिली सिस्टम डिस्पाइट इकोनॉमिक क्राइसिस मेंटेन्स पीस ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, पीस ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेता है ना। और ब्रिटेन में क्या होता, फैमिली इज लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट, जब भी लोड बढ़ता बम ब्लास्ट, डिवोर्स एंड सेपरेशन। आगे पढ़ेंगे फैमिली में कि यूरोपियन न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में पर्सपेक्टिव है एडमंड लीच का, कि ये जो फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज के जैसा है, और जिस फ्यूज पे जब भी लोड बढ़ता ब्लास्ट हो जाता, डिवोर्स हो जाता। और हमारे यहाँ जब लोड बढ़ता तो और यूनाइट हो जाते, है ना। गानों में भी यही लिखा रहता, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, काइंड ऑफ, यस ना। राइट, सो दैट इज ओके। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्स मूलर, हर्बर्ट रिजले, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, हर्बर्ट रिजले, अभी लिखा ना आपने हर्बर्ट रिजले, विलियम जोन्स, हेनरी मेन, HENARY, हेनरी मेन, MAINE, मेन, ड्यूमोंट, एक ये कैरेक्टर आएंगे अभी आगे, ड्यूमोंट, DUMONT, लुई ड्यूमोंट्स, L ड्यूमोंट, DUMONT, है ना, DUMOLOUIS, लुइस ड्यूमोंट, DUMONT, ड्यूमोंट, etc. are all referred as Orientalist Indologists. Orientalist Indologists. Right? Full stop. G.S. Ghurye, Radha Kamal Mukherjee, R.K. Mukherjee, MUKHERJEE, R.K. Mukherjee, Iravati Karve. We will refer in systems of kinship in India. इरावती कर्वे ने ही इंडियन किनशिप को डिवाइड किया है, स्टडी किया है। इरावती कर्वे, इरावती, IRAVATI, इरावती कर्वे, KARV, इरावती कर्वे, राइट। PH प्रभु, P.H प्रभु, PRABHU, प्रभु, etc. ना, structural functionalist, etc. are referred as Indic Indologists. Indic Indologists. Full stop. G.S. Ghurye played important role. G.S. Ghurye played key role in, इसी में कंटिन्यू कर लोगे, इसी में पैराग्राफ। G.S. Ghurye played key role in establishing Indology as important perspective to study Indian society. अब आ जाइए हेडिंग देकर, G.S. घूरिये, है ना, G.S. घूरिये, गोविंद सदाशिव राव घूरिये, राइट, G.S. घूरिये। We will briefly describe about G.S. Ghurye first, and then not all his works but important works related to our syllabus, जो हमारे syllabus में है। Caste is in our syllabus, तो G.S. Ghurye's perspective on caste, tribes in India हमारे syllabus में है, तो G.S. Ghurye's perspective on tribes, religion हमारे syllabus में है, तो G.S. Ghurye's perspective on रिलीजन, बोले तो इंडियन साधुज,
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इंडियन साधुज के ऊपर, राइट? उनका रोल क्या रहा है इंडिया के कल्चर में, ट्रेडिशन में, एक्सेट्रा। अर्बनाइजेशन है ना हमारे यहाँ सिलेबस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। सो जीएस घुरेज पर्सपेक्टिव ऑन अर्बनाइजेशन, राइट? दीज डायमेंशंस वी विल डिस्कस, इजंट इट? राइट। सो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि जीएस घुरिये इज रेफर्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राइट? He is considered as commander-in-chief of sociological frontiers of India because he single-handedly trained the first generation of Indian sociologists, isn't it? He established, the first department of sociology in University of Bombay University, isn't it? Right? और वहीं से फिर sociology का spread शुरू हुआ, राइट? इंडियन सोशियोलॉजिकल जर्नल को पब्लिश करने में ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, इजंट इट, इन इनिशिएशन, एंड दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड एज अ रिसर्च सब्जेक्ट। क्योंकि जर्नल चाहिए होता है किसके लिए? रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, राइट? इंडिया में जर्नल्स ही नहीं है बहुत ज़्यादा, और है भी तो आपको अवेयरनेस नहीं होता जहाँ पे आप कुछ अपना रिसर्च को पब्लिश कर सके, इजंट इट? राइट। सो ये कुछ फैक्ट्स है रिलेटेड। दूसरा फैक्ट ये है कि जीएस घुरिये, एज आई सेड, कि इंडोलॉजिस्ट, एंड इंडोलॉजिस्ट का फोकस ऑन स्टडी ऑफ रियलिटी इन कॉन्टिन्यूटी। कैसे स्टडी करना है रियलिटी को कॉन्टिन्यूटी में, राइट? तो जैसे रियलिटी ऑफ कास्ट, कास्ट एक रियलिटी हमारे सोसाइटी में है ना। तो जीएस घुरिये एडवोकेटेड कि एनी सोशल फैक्ट इन इंडिया, सोशल फिनोमेना इन इंडिया, समझ लो इस बात को जरा, must be understood, analyzed, understood in continuity. Any social fact, any social phenomena related to modern Indian society too must be studied, must be analyzed in continuity, right? कि how this phenomena, over the period of time, right, transited, जैसे मॉडर्न हमारे बहुत सारा मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है ना हमारे सोसाइटी में, कि हाउ इट ट्रांजिटेड, हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, एंड हाउ इट ट्रांसप्लांटेड। 3 पॉइंट पे वो फोकस करते हैं अपने एकेडमिक रिसर्च में: ट्रांजिशन, ट्रांसप्लांटेशन, एंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कास्ट अपन डिस्कस करेंगे तो जीएस घुरिये साहब मानते हैं कि कास्ट ट्रांजिटेड फ्रॉम आर्यन टू नॉन आर्यंस इंडियंस, आर्यंस टू नॉन आर्यंस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस टू इंडिया। अब मान लोगे एक ये थियरी है, एक ये पर्सपेक्टिव है ना। ही बोरोड इनसाइट्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ हर्बर्ट रिजले के राइटिंग से उन्होंने बोरो किया, जिन्होंने लिखा था कास्ट एंड ट्राइब इन बंगाल। लेटर ऑन ही पब्लिश्ड कास्ट एंड ट्राइब इन इंडिया। वहां से इंसाइट लिया, एंड ही आर्ग्यूड दैट कि कास्ट ट्रांजिटेड फ्रॉम आर्यंस टू नॉन आर्यंस, राइट? इट गॉट ट्रांसप्लांटेड इन इंडियन सोसाइटी एज इंस्टीट्यूशन, एज इंपॉर्टेंट सोशल फैक्ट, with transformation, right? In this transition and transformation, he believed that Brahmins played important role. Brahmins in Indian society, according to Ghurye, are not respected because of their birth as Brahman. कि they are superior caste because of their birth. No, Brahmins are treated superior according to Ghurye because of their role, because of their occupation of socializing people in the virtues of caste. आप कहेंगे कैसे? What he socialized? तो उनका ओपिनियन होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि when Aryans came to India, they were defeating non-Aryan rulers and they're grabbing land of non-Aryans. Isn't it? Non-Aryans को क्या कर रहे थे? Defeat कर रहे थे, non-Aryans को slave बना रहे थे, isn't it? उनके land को grab कर रहे थे.
At that point of time, Brahmins were selfless wandering priests. Brahmins क्या थे? Selfless wandering priest, the sadhus. Brahmins किसके रोल में थे? साधु को, priestly रोल में थे, right? जिनका काम था मतलब भिक्षाटन and non-Aryans को priestly services देना, isn't it? Brahmins understood that Aryans are superior not because of their physical strength and abilities, rather their social organization. Aryans were organized into caste, and caste was the means of division of labor among the Aryans. Caste was the means of division of labor, and so Aryan society was far more disciplined and superior society than non-Aryan society because of organization, social organization of Aryans into caste. Social organization of Aryans into caste, right? Brahmins understood these virtues of Aryans because Aryans did not target Brahmins क्योंकि वो तो क्या थे? उसके लिए जीएस घुरे साहब यूज करते हैं selfless, saintly, wandering priests. Selfless, saintly, wandering priests. Ascetics. Ascetics say. Right? So they became close to the Aryans and understood their social organization. Ki they were superior because of their social organization into caste. Isn't it? And Brahmins socialized non-Aryans. क्योंकि majority of population non-Aryans, Brahmins first socialized to non-Aryan rulers into the virtues of caste, and non-Aryan society was also organized on caste lines, isn't it? And this is how it got transited. Caste got transited from non-Aryans to Aryans to non-Aryans and transplanted in India. But Ghurye कहते हैं, Ghurye argued that कि non-Aryan society before the advent of Aryans was highly differentiated and hierarchical society. मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि ये कास्ट से हायरार्की आया. ये जो रिजिड हायरार्की आया कास्ट में वो इसलिए बिकॉज बिफोर एडवेंट ऑफ आर्यंस द नॉन आर्यन सोसाइटी वाज आल्सो हायरार्किकल, राइट? जो वैदिक रेफरेंस वो देते हैं उसमें कहते हैं कि आर्यंस में कास्ट वाज जस्ट अ मींस फॉर ऑर्गेनाइजेशन of the society and division of labor in society. Caste names were prescribed on the basis of occupation. Caste was not ascribed on the basis of birth, rather caste position among Aryans were achieved through occupational skills, occupation. लेकिन before advent of them, non-Aryan society was hierarchical. Hierarchical. Not on the basis of occupation, rather status, privilege and prestige, prestige and privilege, right? So Ghurye Sahab ke according कि when this caste transited from Aryans to non-Aryans and transplanted in non-Aryan society of India, it got transformed. It got transformed and certain new features or virtues of caste emerged, and one feature was hierarchical inequality. Hierarchical inequalities, isn't it? New values and ideals like notions of purity and pollution to maintain the hierarchical separation. To maintain the hierarchical separation emerged in course of time in Indian society. Getting your point? Right. इसका सब्सटेंशियल एक प्रूफ ये है कि कास्ट एज ए फेनोमेना एट पैन इंडिया लेवल इज वेरी लोकलाइज्ड फेनोमेना. लोकल कास्ट ग्रुप्स है. जाट्स आर लोकलाइज्ड इन सम एरिया, रेडीज आर लोकलाइज्ड इन सम अदर, वोकालिगाज इन सम अदर एरिया, लिंगायत्स इन सम अदर एरियाज, राइट? बट ब्राह्मण is the only caste spread at pan India
लेवल, राइट। जिस गुरु कहते हैं कि ब्राह्मण्स फर्स्ट सोशलाइज्ड rulers, non-Aryan rulers into the virtues of caste, and then they went to different parts of India to socialize the masses into virtues of caste, and so caste Brahman as a caste group found at pan-India level. In northeastern states to, Punjab, and from Tamil Nadu to Kashmir, Brahmin caste, a pan India in nature, not other caste groups. तो ये भी right, right. Apart from these points, some more points I will discuss tomorrow, right. यहाँ थोड़ा जैसे बहुत लोग आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो लिमिटेशंस में करेंगे, है ना। हम कुछ लिमिटेशन बात करेंगे, वी विल डिस्कस लिमिटेशंस, बट ये पॉइंट्स को एक्सेप्ट भी करेंगे, राइट। यस, वर्टिकल बन जाता है, यस 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 यस। कास्ट एक्सोगेमी, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर कास्ट एक्सोगेमी। हाँ, कम अगेन। हाँ हाँ हाँ, ओरिएंटलिस्ट, यस, हाँ हाँ हाँ। यस यस। सो सिंहासन खाली करिए आप लोग कि जनता आती है ना। पहले आया कास्ट वर्ना के फॉर्म में ही, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसप्लांटेशन में कल्चरल डिफ्यूजन हुआ एंड स्प्रेड हो गया। यस 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 यस। हाँ, जहाँ फैक्ट आ जाएगा वहाँ इंडोलॉजी भाग जाएगा। ये ज़्यादा फिलोसफिकल है, लेकिन हेल्प अस अंडरस्टैंड द रियलिटी। यस और नो। पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव है, एक व्यू पॉइंट है। इंडियन सोशियोलॉजी में थियरी नहीं चलता है, इंडियन सोसाइटी में पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट। आपका चैप्टर हेडिंग क्या है सब्जेक्ट का? इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज। इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज है ना हमारा, इंडियन सोशियोलॉजी तो नहीं है ना। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव यहाँ बोलते हैं कि स्टडी के लिए क्या चाहिए, पर्सपेक्टिव। तो अपन इन 3 पर्सपेक्टिव तो लगाते ही लगाते, इसके अलावा क्या लगाते? पेपर 1 के सारे पर्सपेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग, यस यस प्लीज। हाँ, हाँ सिंपल। पॉजिटिव हो गया जैसे कुछ हम इनिशिएटिव ले लिए, अपने को हैंग कर लिए, पॉजिटिव हो गया। वो कॉन्टेक्चुअल यूसेज है टर्म का। नेगेटिव फास्ट करके मर गए। हाँ 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 हाँ, तो वही ना संथारा। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ एक कॉन्टेक्चुअल यूसेज है कि थ्रू एक्ट के थ्रू मर जाना, है ना। मतलब कुछ एक्ट करना, गाड़ी ले जाके इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल, नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे, राइट, इंडिविजुअल। प्लीज।